Okay, so 72 minus your age. Let's assume Rahul, you look 28, 30, right? I don't know what's your age, but I'm giving you a guess. So Rahul, what's your age? Yeah, you can unmute. अच्छा 40. अच्छा मैं तो यार राहुल यू लुक प्रीटी यंग गुड. सो राहुल अभी आपका केस स्टडी लेते हैं और बाकी सब लोग इसको समझ लेना. इट्स वेरी सिंपल, अदरवाइज आपके सामने लिखा हुआ है. यू आर 72 minus 40 or minus your age simply means out of 72 plus years some portion has gone, finished. You cannot do anything. You can claim it कि आपने बहुत कुछ सीखा जिंदगी में. You have got experience, you have got education, you have got wisdom, you have blah blah blah, but that's gone. The last 12 is, the minus 12 is the last years of our age, when I'll be really old, when my body is not going to help me, when my emotions will be low, my energy will be low, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा. Last years, maybe you can think about your parents or maybe the grandparents. अब मजेदार बात यह है कि out of 72, 40 is gone and then 12 are gone. So Rahul, all you have is 20 years. Now a Rahul who has only 20 years, Rahul has good, great, big dreams. And all he has is 20 years to make it happen. And actually not 20 years. Because 20 years तक होगा तो फिर वो 12 years start हो जाएगा. So you don't have 20 years. Because whatever you want to experience today. If you want to have a beautiful car, actually your mind wants it today. So you don't have much time. So first thing is the equation of life we need to understand is, if you have to be awesome, if you want to experience a beautiful, great life as a businessman, as a father, as a mother, as a brother, or whoever, now is the time that you have to start taking responsibility of your life. So the first mindset of a wolf is to decide right now, right here in the beginning. Wolves जब hunt के लिए जाते हैं ना, तो वो कभी भी ऐसे नहीं जाते अरे चलो 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 कुछ दिखेगा तो मार लेंगे. No. They go well prepared. They go with clarity. Where are they heading? What exactly are they looking for? And then they have A, B, C, D things which I'm going to tell you. So if this is clear, give a heart to each other. If not, you can call me, you can ask me, I'll answer it. Yeah, anybody? All good to go? All clear? Sahil, can you just explain this phenomena in a little detail? Okay, this equation of life? No, not the equation of life. The very first quote that when the wolves go for hunt, they are absolutely clear. Whatever. Okay, you need to repeat. I think I am not getting you. Please आप अपनी बात आराम से बोलो दोबारा. साहिल जी ऐसा है कि ये इक्वेशन वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो वुल्व्स का पहली चीज है which is clarity, उस वाले पॉइंट पर थोड़ा सा और डिस्क्राइब. Absolutely. Thank you, Joy, for giving me the opportunity to explain it a little more deeper. Wolf mindset में the most powerful thing is they never ever go just like that. That means जो लायन के केस में है कि लायन के केस में क्या होता है, लायन इज बेसिकली वेरी लेजी, राइट? हमारे हिसाब से, ह्यूमंस के हिसाब से, अपने हिसाब से तो वो कैसा उसको मालूम होगा. लायंस के केस में क्या होता है या बाकी प्रेडेटर्स के केस में क्या होता है कि दिखेगा, भूख है नहीं है, उनको लगेगा, उनकी इंस्टिंक्ट बोलती है, अटैक करते खा लेते हैं. नहीं खाएंगे तो मार के फेंक देंगे. लायन के केस में ऐसे होता है. लायन तो बहुत देर से एक्शन लेता है. लेकिन वुल्फ जो है वो हमेशा से कंप्लीट प्लानिंग के साथ जाते हैं. दैट मीन्स दे ऑलवेज हैव द क्लैरिटी कि वी आर 14 पीसेस और हम 12 लोग हैं, हम 15 लोग हैं. साइज ये वाला काम करेगा कि नहीं करेगा, ये वाले पे एनर्जी लगानी है, उस पर लगानी है. तो दे हैव क्लैरिटी राइट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. तो आई कॉल इट NOW इज द टाइम कि अगर आपको जिंदगी में वुल्फ माइंडसेट चाहिए तो सब कुछ छोड़ दीजिए आज. थ्रो अवे ऑल द बुक्स, throw away all your experience, all your wisdom, and become new and write down ki clarity say in the coming 1, 2, 3, 4, 5 years, what exactly do you want? What do you want to experience? What do you want to have? What do you want to share? Every single detail has to be on the paper. As this is what I suggest everybody. So this is level 1. So I hope I am able to convey. नहीं तो दोबारा बैठ जाएंगे. All yours. Yes, Joy?
फैंटास्टिक, थैंक यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट, अब ये फिर अटक गया, देखता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ, आ गया। अब इसको देखिए, लाइफ, नाउ की फुल फॉर्म जो है, जो मैंने बनाई है, दैट इज, नाउ इज, आपने सुना भी होगा, अगर अभी नहीं तो, एवरीबडी, सबके दिमाग में होगा कभी नहीं, क्योंकि वी आर प्रोग्राम फॉर दैट, अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। हम सबको समझाते भी हैं कि अगर अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, बट ये बात समझाते समझाते हमने मान ली है कि अगर हम अभी नहीं कर पाए ना तो हमसे कभी नहीं होगा। और यहाँ पे एक फ्लिप है, यहाँ पे एक स्विच है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो सौरभ समझ सकते हैं, एनएलपी वाले समझ सकते हैं, कि हमने अपने दिमाग को प्रोग्राम किया है। तो सबसे पहले नाउ का मतलब, अभी का मतलब है, लिख लीजिएगा, NOW, नो अदर वे, दैट मीन्स आज ही करना है, अभी करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपको मैं बताने वाला हूं वो आज रात को करके सोना। और अगर आप ज़्यादा गहराई से जानना चाहोगे तो मैं बोलूँगा, टेक अ गुड शावर। अगर आप गर्मी वाली जगह में हो तो ठंडे पानी से इतना नहाओ कि बॉडी ठंडी हो जाए। अगर आप गर्म वाली जगह में हो तो गर्म पानी से नहाओ ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। और फिर उसके बाद राइट डाउन व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। सो सबसे पहली चीज, एज आई सेड, वी हैव 72+ years, दैट्स कॉल्ड लाइफ। एंड इन दिस लाइफ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, है ना, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आप कुछ भी ड्रीम बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, लोगों की सेवा, कुछ भी बोलोगे, दैट इज बेसिकली इज इन रिलेशन टू योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। अदरवाइज गरीबों की सेवा और लोग भी तो कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं खुशी हो रही? कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कार कितने बढ़िया लोग चला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कार चला रहे हैं, भाई, बी हैप्पी एंड सी देम एंड बी हैप्पी। नो, यू वांट टू हैव योर ओन एक्सपीरियंसेस। सो लाइफ का मकसद जो है, दैट इज अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। एंड एज यू कैन सी द स्पेलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन इज इनकम्प्लीट विदाउट एक्शन। हम ह्यूमंस की नेचर में ये है टू टेक एक्शन। हम नहीं भी काम कर रहे होंगे तो भी हम एक्शन करेंगे। तो यहाँ पे दो के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। आई एम सॉरी, हम दो तरीके के एक्शन लेते हैं, अदरवाइज गुड एक्शन, बैड एक्शन, लिस्ट इज ह्यूज, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ एक्शन। वन इज इंस्पायर्ड एक्शन, वन इज फोर्स्ड एक्शन। नाउ हियर इज द डिफरेंस ऑफ अ वुल्फ माइंडसेट। क्यों माइंडसेट, क्यों हमें वुल्फ से सीखने की जरूरत है? बिकॉज वुल्फ्स आर नॉट लेजी, humans are, we are born lazy, right? That's why we take 9 months. Anyways, so for inspired action क्या है और forced action क्या है, इसको फटाफट समझ लेते हैं। अगर आपको रोजाना सुबह उठने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है तो that's a forced action। आप अपने आप नहीं उठ पा रहे हो, that means कि सुबह उठने के लिए आपके पास कोई solid reason नहीं है कि yes, you should get up in the morning and you should just go out of your house, jump and go for exercise, go to gym, run, whatever. So you are being forced, you are programmed, there is a programming कि आप forced हो गए हो, आपकी दिमाग धक्के से चल रहा है। एंड इंस्पायर्ड इज ऑपोजिट ऑफ, आपको कोई अलार्म की जरूरत नहीं, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये कर वो कर, यू आर सो इंस्पायर्ड, यू टेक एक्शन, यू डोंट, नोबडी टेल्स यू कि ये है वो है, नथिंग, आप एक्शंस लेते हो। तो फोर्स्ड एक्शन और इंस्पायर्ड एक्शंस, और यहाँ पे एक कैच है, अगर आप एक दूसरे को हार्ट देंगे तो मैं कैच बताता हूँ आपको। कैच क्या है? फोर्स्ड एक्शन में और इंस्पायर्ड एक्शन में, फोर्स्ड एक्शन में एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं क्योंकि उसमें आपका दिल नहीं होता। इंस्पायर्ड एक्शंस में आपकी कैपेसिटी के हिसाब से एक्शंस लगते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दोपहर के 2 बजे हैं और आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स या आपका कोई भी बोलता है कि जाओ बाजार से 1 किलो सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ, और आपका सॉफ्ट ड्रिंक पीने का कोई दिल नहीं है, क्या होगा? आपको बाजार जाना मुसीबत लगेगा। बट वही जाएंगे सर, हाँ जी, पैर पटकते हुए जाएंगे, करेक्ट, पैर पटकते हुए जाएंगे। और अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीने का दिल होगा तो 2 बजे आपको जाने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो मजेदार बात यहाँ पे सीखने वाली है, जो वुल्फ माइंडसेट वाली ये है कि इफ यू स्टार्ट टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस, यू हार्डली पुट एनी एफर्ट्स। सो यहाँ पे हमको क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि व्हाट इंस्पायर्स अस द मोस्ट। और वुल्फ के केस में उनकी इंस्पिरेशन क्या है? कैन समबडी गेस व्हाई वुल्फ्स आर सो इंस्पायर्ड? व्हाई डू दे मूव टुगेदर? व्हाई आर दे ऑलवेज विद अ पैक? वो बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा।
इफ़ यू हैव अ डायरी पेन, और सबसे पहले यार सौरभ टाइम देख ले भाई, कहीं ज़्यादा ना हो जाए. 9:14, अनदर 15 मिनट्स है ना, एज प्रॉमिस्ड, राइट. तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हम स्किप कर देते हैं. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे देता हूँ, इसके बाद दोबारा कभी आप कहेंगे तो आई विल बी देयर विद यू. यस, ये आपके साथ शेयर करता हूँ. दिस इज समथिंग यू शुड नो. इसको इज इट ओके अगर हम 9:30 बियॉन्ड चले जाएं? तो आपको मज़ा बहुत आएगा, लेकिन अगर नहीं तो हम इसको फिर अभी बंद कर देते हैं, दोबारा कभी सेशन कर लेंगे. Well, I'm on. We can move beyond. ओके. सो अगर सौरभ एक बार वोट ले लो या चैट में देख लो, तो हम इसको 9:45 तक लेके जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस. 9:45 जॉय सेज, आई थिंक राहुल ऑल्सो सेज, फेयर इनफ. ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट को देखो आप, और फटाफट अनम्यूट करके बोल दो आपको जो भी दिखाई दे रहा है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में क्या क्या आपको दिखाई दे रहे हैं. तो मैं आपको अच्छे से तो एक्सप्लेनेशन जो है बेटर हो जाएगी. यस, एनीबडी? You can unmute. So this is- हाँ बोलो प्लीज. It is high or low, self or social. I mean, which is social or selfish, high or low. Here are the two quadrants. If I could understand this, हाँ then wolf is high on self. हाँ, वो एक्सप्लेनेशन नहीं. आप सेइंग कि 4 पिक्चर्स दिख रही हैं, वो एक्सप्लेनेशन मुझे करने दो. है ना मैं. ठीक है, तो ये अब देखिए, सबसे पहले हम टॉप लेफ्ट में देखते हैं, दैट इज फॉक्स. और अपने कॉपी पेंसिल में आप लिखना स्टार्ट कर देना, फॉक्स, FOX, राइट. फॉक्स की फुल फॉर्म इज फाइंड आउट एक्स, नॉट द एक्स गर्लफ्रेंड और द बॉयफ्रेंड. फाइंड आउट एक्स, FOX, फॉक्स. एंड दिस एक्स जो है हम हजारों सालों से ढूंढ रहे हैं ना. मैं तो 8वीं 9वीं में फाइंड आउट, लेट्स फाइंड एक्स, राइट. सो फाइंड आउट एक्स, FOX. ये कौन है? फॉक्स की नेचर को अगर आप सच में समझोगे तो फॉक्स इज एन एनिमल जो बहुत मजबूरी में हंट करता है, बहुत मजबूरी में. उसको मुसीबत लगता है, लेकिन उसको बढ़िया क्या लगता है, वो शेर के आसपास रहता है, अच्छे हंटर के आसपास रहेगा, छुप के रहेगा. और जैसे वो हंट करेगा तो उसको पता होता है इतना मेरे लिए तो छूट ही जाएगा, इतना तो मिल ही जाएगा, नो प्रॉब्लम्स. और इसको भूख लगेगी तो मेरा काम हो जाएगा. तो फॉक्स की नेचर क्या है? फॉक्स इज लो ऑन सेल्फ एंड लो ऑन सोशल. सेल्फ एंड सोशल क्या है? पीपल हु आर सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ पे फोकस रखते हैं. पीपल हु आर रियली लाइक दे लव टू मीट पीपल, से हेलो टू एवरीबडी, दे आर सोशल. एंड देन देयर इज अ कॉम्बिनेशन. सो अगर समझ में आ रहा तो गिव मी अ हार्ट, देन आई विल गो अहेड. सो फॉक्स इज अ पर्सन. आपके ऑफिस में भी होगा, अगर आप आंखें बंद करके देखोगे ना तो ऑफिस में भी होगा. ये आपका आइडिया सुनेंगे चुपचाप, बॉस को सबसे पहले मेल कर देंगे और वो क्लेम देने की कोशिश करेंगे ये मेरा आइडिया है. और इनमें इतने गट्स भी नहीं होते हैं कि आपको आके बोले या किसी को बोले हाँ मेरा अपना आइडिया है, नहीं. क्योंकि इनको मालूम है आइडिया तो दे दिया, अब उसको बिल्ड कैसे करना है उसके लिए उनके पास नॉलेज नहीं है. तो ये आपका काम भी खराब करते हैं. आइडिया इधर से उठाया, बॉस को दे दिया, बॉस ने कहा बहुत अच्छा है, उसने उस पर काम किया, ना इसको क्रेडिट मिला ना जिसका आइडिया था उसको क्रेडिट मिला. दे आर ऑलवेज फाइंडिंग आउट एक्स. वो जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं, ड्रीम्स तो सबके हैं, बट दे डोंट हैव द कैपेसिटी. सो दे आर वेरी लो ऑन सेल्फ एस्टीम, दे आर वेरी लो ऑन सोशल स्किल्स. देन कम्स नेक्स्ट, ऊपर चलते हैं तो क्रो, CROW. कौवे की नेचर क्या है? कौवे की नेचर है काँव काँव करता है, बहुत शोर मचाता है. और कौवे के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे. कौवे को कहीं भी खाना दिखाई देगा ना तो वो खाना पहले नहीं उठाता है, वो काँव काँव करके सबको बुलाता है. नॉट ओनली फॉर दिस कि वो शेयर करेगा, बट ऑल्सो फॉर दिस कि इट्स अ मैटर ऑफ सेफ्टी. अकेला जाएगा तो हो सकता है पकड़ा जाए, अकेला जाएगा तो हो सकता है कोई पकड़ ले, जानवर खा ले, बट सब साथ आएंगे तो शायद बचा ले. तो कौवे के केस में क्या, ही इज हाई ऑन सेल्फ बट लो ऑन सोशल. बुलाता तो है बट फोकस उसका अपना है. तो कौवे वाले लोग कैसे मिलेंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन में? कभी देखना, ये लोग होते हैं ज्ञानी.
ये हर किसी को, हर किसी के चैम्बर में जाके, टेबल पे जाके कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे होंगे। कोई बोलेगा यार मेरी तबीयत, अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो एक काम कर, कल से ना तू अदरक डाल के पानी में पी लिया कर। कहीं जाएंगे, यार मेरा बच्चा नहीं पढ़ा, अरे तेरा बच्चा नहीं पढ़ता, कौन सी क्लास में, 10th में, अरे तू मेरी एक बार बात करा देना, मैं ठीक करता हूँ उसको। तो दे आर टू हाई ऑन दिस थिंग कि शोर बहुत मचाएंगे, लोगों को बहुत ज्ञान देंगे, लेकिन अपना जो सेल्फ है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। देन कम्स लायन, LION। पहले CROW की फुल फॉर्म लिख लो, फिर अगली बार शेयर करूंगा डिटेल में, क्योंकि मेरे दिमाग में ना टाइम का प्रेशर पड़ जाता है, बिकॉज मेरे को आदत है कि 9:30 बोला तो 9:29 पे खत्म करना है। जो शेर है वो कौन है? ही इज अपने सेल्फ प्राइड, मैं ही मैं हूं। सोशल का उसको बोलता है इनको देख लूंगा, मैं डोमिनेट करूंगा। ये कैसे लोग होते हैं, ये भी आपने ऑफिस में एक्सपीरियंस किया होगा। अथॉरिटेटिव, बिना बात के, पोजीशन कोई भी हो, चाहे वो पियोन भी होगा ना, अगर उसकी बिहेवियर, उसकी नेचर लाइन वाली होगी ना, वो कहेगा हाँ हम छोटे मोटे पियोन थोड़ा ना, हम टाटा कंपनी के पियोन हैं। वो उसमें भी ढूंढ लेगा कुछ ना कुछ सेल्फ एस्टीम अपनी, राइट। तो लाइन, तो क्रो की फुल फॉर्म है कॉल, रीच आउट, कॉल एंड रीच आउट है बेसिकली, बट कॉल, रीच आउट, CRO, कॉल, रीच आउट एंड ऑफर विजडम। सबको ज्ञान देगा कौवा। आपके ऑफिस में होंगे ज्ञानी लोग, सबको ज्ञान देते हैं। वो पार्किंग वाले को भी ज्ञान दे रहे होंगे, वो जूते वाले को भी ज्ञान दे रहे होंगे, राइट। एंड लायन, LION, It's call, reach out, and what is the last part? विजडम, ऑफर विजडम। वो ज्ञान देते हैं, विजडम देते हैं। एंड देन कम्स लायन। लायन इज लीड्स इनसाइड आउट नेचुरली। अपने मतलब के लिए वो उठेगा, अपने मतलब के लिए बात करेगा। आई एम द किंग, आई एम द लायन, आई कैन हंट वेन एवर आई वॉन्ट। ये क्या नौकरी है, कभी भी कहीं भी मेरे को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसे लोग मिले हैं जिंदगी में तो मुझे बताना, मैं इनके आपको कलर्स भी बता सकता हूँ कि कैसे कलर्स पहनते हैं एज के हिसाब से। ठीक है, तो ये लायन हो गया। एंड देन कम्स माय फेवरेट, द कॉर्पोरेट वुल्फ। वुल्फ की फुल फॉर्म इज WOLF, हाई ऑन सेल्फ, हाई ऑन सोशल। These are the people who work on themselves and they groom others. इनकी ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, बट दे आर नॉट द ब्रिक ऑफ द वॉल, दे आर द सीमेंट बिटवीन दी वॉल्स। ये बहुत सटल होते हैं, बहुत शांत होते हैं, कोई शोर नहीं मचाते, कोई इधर की बात उधर नहीं करते। दे ट्रीट देयर ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ फैमिली। बोलते हैं हम यहां हैं तो हम यहां के हैं, कहीं और जाएंगे तो फिर हम वहां के हैं, बट हम जहां पे भी होंगे सिंसियरिटी से काम करेंगे। तो द कॉर्पोरेट वुल्फ इज WOLF। वुल्फ नोज विजडम ऑफ WO, विजडम ऑफ लीडिंग फैमिलीज। जहां भी जाएंगे ना, ये बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो आप कौन सी किस्म में हो, बट कहीं पे भी हो आपको वुल्फ की तरफ जाना है। कोई गेस करेगा मैं कि पहले किस में था? अभी मैं वुल्फ में पहुंच रहा हूं धीरे धीरे, बट पहले कहां था, कहां से चला हूं? कोई कैन समबडी गेस? मेरा दिल नहीं टूटेगा, आप गेस करो। अभी आप मुझे 1 घंटे में जितना भी समझे हो गेस करो। हाँ, हमें लगता है तू फॉक्स होगा, लायन होगा, क्रो होगा, बट हमें तो तू वुल्फ लग रहा है। जो आपका दिल करे। लायन टू वुल्फ, ओके, लायन टू वुल्फ। ये आप लोग मेरा दिल रख रहे हो लायन, मैं आपको बताता हूं। आई वॉज अ क्रो, आई वॉज अ क्रो। मैंने किताब में से पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, बट बांट दिया। समझाने में बहुत अच्छा हूं, कुछ भी समझा दूंगा, और कहीं भी सबको ज्ञान, सब कुछ मालूम है, क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को नॉलेज बना लिया। और प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है तो लोगों को लगता है यार ये क्या आदमी है, इसको क्या मालूम है यार। बट मैंने रियलाइज किया पिछले 15-20 सालों में, तो धीरे धीरे अपने आप को क्रो से वुल्फ की तरफ लेके गया कि ऐसे काम नहीं चलता है, कितनी देर काम चलेगा। लेकिन क्रो की वैल्यू अपनी है, वुल्फ की वैल्यू अपनी है। वुल्फ इज अ बिल्डर।
तो वहाँ से धीरे 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 मैं यहाँ पे लेके आया, मेरे अंदर चेंजेस आए, और जब मेरे अंदर चेंजेस आए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि दिस प्रोग्राम वर्क्स बिकॉज इट हैज हेल्प मी ट्रांसफॉर्म। तो लेट्स गो आगे। तो ये मैंने फिर अटक गया, एक मिनट, या तो ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, यहाँ पे यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछो, कि क्योंकि कॉर्पोरेट से नहीं है तो जो भी आपके सवाल है मैं आपको रिलेट करके बात करता हूँ। ओवर टू यू जॉय। एक बार ना सर आप ना लाइन वाला जो क्वाड्रेंट है वो बता दीजिए। ओके, सो लाइन इज हाई ऑन सेल्फ, मैं ही मैं हूं, लो ऑन सोशल, तू क्या है, तुझे क्या पता, तू मुझे बताएगा। इनके सेंटेंसेस होते हैं ऐसे, अगर आपने कभी सुने होंगे, 100% सुने होंगे, तू जा रहने दे, तू मुझे बताएगा, राइट। सो ये लाइन है। तो हाई ऑन सेल्फ, मैं ही मैं हूं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये कभी मेरे सेंटेंसेस हुआ करते थे 10-15 साल पहले। सो वेलकम टुवर्ड्स बीइंग अ वुल्फ। थैंक्स। सो जो कॉर्पोरेट वुल्फ है, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम मैंने बनाया। तो आप सब लोग कोचेज़ हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक, बिकॉज मैं डिजिटल में इतना अच्छा नहीं हूँ एक्सप्रेस करने में, बट मैंने सीखा है अभी सौरभ के साथ कुछ दिनों में, ये मेरी बड़ी हेल्प की है इसने। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, कैमराइज ये, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अच्छा लगा है तो एक्सप्लेन मत करें किसी को भी, बट कनेक्ट ज़रूर कर दें मेरे साथ। एंड धीरे धीरे एक कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं जहाँ पे मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं 100% करूँगा। जहाँ आप मुझे कर सकते हो, मुझे आप करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द, क्या बोलते हैं, कोचिंग फ्रेटर्निटी बिजनेस। सो एनी क्वेश्चंस, ओवर टू ऑल ऑफ यू। और अदरवाइज मैंने क्वेश्चंस रखे थे कॉर्पोरेट वालों के लिए कि उनके क्वेश्चंस होंगे, मैं उनको जवाब दूंगा, तो मैं एक एक आंसर के साथ माइंडसेट बताता जाऊंगा। बट आज का दिन इतना सौभाग्यशाली रहा कि कोई भी नहीं आया, तो हम लोग आपस में इस तरीके से बात कर सकते हैं। ओवर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। कोई सवाल पूछ लो यार, एक आधा 2-4 कम से कम दिल रखने के लिए। या यस सूर्य। तो अगर मेरा बॉस लायन है और मुझे उसके साथ काम करना है, तो मतलब मुझे सफोकेशन हो रही है कि वो मुझे ऐसे क्यों फील करा रहा है कि अब तो कुछ भी नहीं है, जो हूँ मैं ही हूँ। तो या तो दैट काइंड ऑफ बिकम्स अ टॉक्सिक काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट फॉर मी, राइट? एब्सोल्युटली। तो हाउ डू यू काइंड ऑफ, मैं अपने आप को तो चेंज कर लूँ, बट उसको कैसे चेंज करूँ, या तो कंपनी चेंज कर दूँ? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो मैंने 12 अभी एग्जांपल्स दिए थे ना, उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है सूर्य, जो मैं बोलूँगा उससे तकलीफ होती है हमको, बट सबसे पहले आप खुद को आइडेंटिफाई करो कि आप क्या हो। आप फॉक्स हो, या हो सकता है आप ही लायन हो सकता है आप ऑलरेडी वुल्फ हो सकता है आप क्रो हो। पहले आप क्या हो, उसके बाद फिर सारी स्ट्रेटजी बननी स्टार्ट होगी। हाँ, मैं तो क्रो हूँ अभी, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा भी कुछ ज्ञान मिलता है उसको बांटना शुरू कर। परफेक्ट। सो क्रो के केस में जो क्वाड्रेंट है वो बिल्कुल अच्छे से बताता है कि दे आर एक्सट्रीमली ऑपोजिट। दे इवन योर बॉस जो है ना, वो आपको पसंद नहीं करता होगा, और एक ज्ञान बहुत बांटती है, करती कुछ नहीं है। You understand this? मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करती हूँ, जितना करना चाहिए। Yes, I totally understand this. But मैं बॉस के हिसाब से बात, लायन के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, कि लायन को ऐसा लगता होगा, राइट? अब इमेजिन करते हैं थोड़ी देर के लिए कि आज आप नहीं थे इस सेशन में, लायन आया हुआ था और उसने बोला यार मेरी टीम में ना मुझे लगता है सूर्य है वो क्रो है, मैं कैसे करूँ? तो इस सबका एक ही जवाब है, डोंट वरी अबाउट द लायन. If you are a crow, if you are a fox, or if you are a lion, don't worry about the crows and foxes. Just try to move towards the wolf quadrant. That's all. Once you start the journey, you will see the change. I'll tell you one thing. Otherwise, on जिंदगी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात कर रहा हूँ और ज्ञान ही लगेगा, लेकिन एक चीज सत्य है, वो ये है कि पहले आपको अपने ऊपर ही काम करना होगा. और जब आपका फोकस अपने ऊपर हो जाता है तो उसके बाद आपको बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई नो वेयर आई एम हेडिंग, लेट पीपल से व्हाटएवर दे आर सेइंग.
सो इसीलिए वुल्फ माइंडसेट का जो मैंने बोला ना कि अगर आप कहेंगे तो आई वुड लव टू सपोर्ट ऑल ऑफ यू कि आने वाले 108 दिन का ब्लूप्रिंट बनाइए कि इन 108 दिन में मैं क्या करने वाली हूँ, क्या होने वाली हूँ। और आप देखना जब आप इस पे काम करोगे ना तो आपके ऑफिस में आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपकी बोलने की टोन चेंज हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी चेंज हो जाएगी और वो लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे, आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट हो जाएगा। और वो जब दिखेगा ना उनको तो ऑफकोर्स शुरू में ये भी अनकंफर्टेबल होगा, बट आपने 108 दिन से पहले हिम्मत नहीं हारनी। दैट्स इट। तो इसको एक कोट आप लिख लीजिए, मेरा फेवरेट है, सी द एंड इन द बिगनिंग। 108 दिन के बाद आप क्या हो जाओगे उसको आज देख लो, सी द एंड इन द बिगनिंग एंड देन सी द मैजिक।